Last lesson, anything which is unclear, please let me know. Page number, paragraph, line, word, anything which is unclear. I am there for you. Khushbu. Yes, ma'am. Ma'am, it's on page number 5. Okay. Third paragraph. Okay. I heard MHML. Fifth line. I heard Emma say to me, I won't scold you, little friends. You must Fifth be line in that paragraph. See how it is. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's a great trouble with Alsace. This line, she puts Yes, ma'am. off learning till tomorrow. I had taught you a word called procrastination. Procrastination is postponing everything. That we shall do it tomorrow, we shall do it the next day. So this is the problem everywhere, universal problem in the world, and that problem was existing in the districts of Alsace and Lorraine also. And the last line of this paragraph. We have all a great deal to reapproach. If you allow me, I will lock the meeting now. 10:01. Should I lock? Okay. That is the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows are the Prussians out there. They will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you cannot speak in your language and you cannot communicate? You are not the worst, poor little France. All of us, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसके लिए हमें रिग्रेट करने की जरूरत है. Reproach is regret. All of us have contributed for the postponing of learning in one way or the other. Khushbu, clear? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Next. और पूछो doubts अपने. Ishita. Ma'am, you told us to write 2 value points in a 2-marker question. How to write long answer question? How many value points are needed? 4, 5 value points and at least 3 paragraphs needed, beta. After every paragraph, one line has to be left so that it makes sense that they are separate paragraphs. Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. And last lesson, any doubts anywhere? कोई किसी को कहीं पे भी डाउट है बिना हेजिटेशन के पूछो बेटा. मैम पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. अर्शदीप, अगर मुझे सेकंड लास्ट पैराग्राफ मुझे और अच्छा लगेगा. पेज नंबर 8. मैम नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थोड़ी आज. अच्छा कोई बात नहीं, बताओ पेज नंबर 8. मैम लास्ट सेकंड पैराग्राफ, वाइवा ला फ्रांस. This is long live France. By the time M. Hamel had to leave and go, he became so emotionally overwhelmed that he could not say anything. He just made a gesture of the class getting over, and then with a big piece of chalk, he wrote on the board saying, "Long live France." Is it clear? Yes, ma'am. Clear? Okay. और बताओ, और कोई डाउट्स हैं लास्ट लेसन में? तो अगर नहीं है डाउट्स तो मेरी बारी है पूछने की. लास्ट लेसन, लास्टिंग लेसन कैसे बन गया? जसप्रीत. Since it was captured by the Germans, Prussians, there would be no longer any French teaching, and hence, for if we can say for the whole part of Alphonse and Nordet, for that place,
it was the lasting lesson because that was their last lesson of French. Anyone who wants to add anything in it? Last lesson was delivered by M. Hemmel in a very patient manner, and it was also, the patience was reciprocated by the receivers. There were people who had come to pay tribute for the 40 years selfless services of the teacher, and they were also sitting there, and the children were very receptive. That is why they could understand everything. And so the way the lesson was communicated and the way it was received, it became a lasting lesson. Learning is a reciprocal process. It cannot happen on one side. अगर मैं बोलती जाऊं, बताती जाऊं और तुम रिसीव ना करो तो लर्निंग नहीं हो सकती कभी भी. अगर तुम चाहो और मैं बहुत indifferently behave करूं तो भी लर्निंग नहीं हो सकती. Both the parties have to come together for completing the process. So last lesson, lasting lesson बन गया, क्योंकि जो देने वाले थे मिस्टर एम हेमल, वो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही ज्यादा नाइसली, बहुत ही इमोशनली डेडिकेट करके लेसन दे रहे थे, और जो रिसीव करने वाले थे द स्टूडेंट्स, दे वर वेरी रिसेप्टिव. इवन द एल्डर्स ऑफ द एरिया हैड कम ओवर so that they could pay tribute. All these points shall be there जब तुम ये वाला point, ये वाला करोगे तो, right? उसके बाद में और क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत सारे. एम हेमल ने फ्रांस को लेट आने के लिए क्लास में आज स्कोल्ड नहीं करा. Why didn't M. Hemmel scold Franz for not learning his lesson or for coming late? Ma'am, can I tell the answer? Please, beta. I will be very happy if you tell the answer, Mansimar. Yes, ma'am. Ma'am, the answer was that because it was the last day of Mr. M. Hemmel, so he did not wanted to scold anyone because he just wanted to spend his last time very nicely with the student and make his memory. So that's why he did not scold him. Okay. और very good. Very nice. और मैम दूसरा क्या पूछा, फिर क्या बोला था आपने उसके आगे? ये बोला था कि अपना लेसन ना लर्न करने के लिए और लेट आने के लिए. आपने आंसर करा, राइट आंसर करा आपने. Somebody else now who wants to try? As he was delivering his last lesson of French on that day, and he wants every student to feel respect about their language. That's why he patiently addresses It is that after the order had come from Prussians that the districts of Alsace and Lorraine, there would not be any teaching and learning of French language, and everybody would be forced to learn German. The last lesson that the teacher M. Hemmel was delivering, he was trying his best to create a lasting impression, for which he even pitied little boy Franz for not doing the thing in the manner it should have been done. So that is why he did not scold. जो आप लोगों ने बोला वो राइट है आंसर. जो मैंने आपको और एडिशनली बताया, आप उसमें वो आंसर का पार्ट ऐड कर दीजिए. Is it okay? Next question now. How was M. Hemmel dressed differently that day? Why? M. Hemmel क्यों ऐसे differently dressed थे और कैसे थे differently dressed और क्यों थे? What was the reason? Ma'am,
जैसे जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है टीचर्स डे पे, तो उस दिन वो जैसे ड्रेस्ड होते थे, उस दिन वो वैसे ही ड्रेस थे टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर लैंग्वेज फ्रेंच. He was dressed in his best attire, which he would wear on the special days, like inspection prize days. It was a beautiful green coat, frilled shirt, little black silk cap, all embroidered. He wanted to give a lot of respect to the language that he had been teaching for 4 decades, and also to the country which had now been taken over by the Prussians. So 2 points इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ड्रेस डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर रीजन डिस्क्राइब करेंगे. Okay, ma'am. Question. How did the people react when they realized that they will never be allowed to learn their language? जो एल्सेस और लॉरेन के लोग थे, उन्होंने इस बात के लिए किस तरह से रिएक्ट करा जब उन्हें ये पता चला कि वो अब के बाद में नहीं सीख सकेंगे फ्रेंच लैंग्वेज? तो उनके क्या रिएक्शन था? Ma'am, they were very shocked that what had happened. Like they were like that. Okay. All right. One is shock. They are not able. वो बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक फर्वर के अंदर थे, और थर्ड बहुत लॉयल और सिंसियर मैनर के अंदर they were trying to contribute for attending the last lesson, and they were listening with rapt attention, and they wanted to give respect even to the teacher who had been teaching for 4 decades. So कैसे रिएक्ट कर? अच्छा, उसमें हम, मैं अगर आंसर लिखूंगी तो मैं लास्ट के अंदर एक लाइन के अंदर थर्ड लाइन एक बनाकर 2 मार्क्स के अंदर मैं ये भी लिख दूंगी, इवन द लिटिल बॉय फ्रांस फेल्ट डिप्राइव्ड एंड he thought if the Prussians would impose the learning of German language on pigeons, he could even think about such things, that he was feeling so suffocated, as if the language is, mother tongue is everybody's natural right. Deprivation of the language is depriving somebody from the communication. So he went to the extent of imagining that if there would be a ban on the learning of on the expression of the mother tongue by the Prussians on the pigeons. Ma'am, plus villagers were also there, na? Like that villagers were also behind. Villagers were also sitting, na? Farmers. This has been included. This has been included. इसके बाद में नेक्स्ट लेसन कौन सा था इशिता जो हमने डिस्कस करना था? Third level. Okay. Third level. Third level. What does the third level symbolize? थर्ड लेवल किस चीज को सिंबलाइज करता है? थर्ड लेवल सिंबलाइज करता है इल्यूजन को, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को, जिसमें कि इंसान एस्केप कर सकता है फ्रॉम दी हार्श रियलिटीज. जो नरेटर है चार्ली, उसका क्वेस्ट है, उसके मन के अंदर ये डिजायर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि वो वाला जो कि बहुत वंडरफुल टाइम था बाइगॉन एरा का, वो उसको फिर से जी सके. थर्ड लेवल डिस्क्राइब करता है, सिंबलाइज करता है वो वाली इमेजिनेशन को जो कि कोई भी इंसान रेजल डेजल ऑफ द सोफिस्टिकेटेड वर्ल्ड से बचने के लिए जहां पर जाना चाहता है. थर्ड लेवल किसको डिस्क्राइब करता है? थर्ड लेवल डिस्क्राइब करता है इंसान के एस्केप करने की स्पिरिट को, उसके इल्यूजन को, उसकी इमेजिनेशन को.
एक नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करो. यू कैन ओपन योर बुक्स एंड डिस्क्राइब थर्ड लेवल, द डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड लेवल. अर्शदीप, वेरी गुड बेटा. Ma'am, there were fewer tickets window, train gates. Okay, Booth in the center was wood and old looking. Means वहाँ पे जो booth था वो wood का था और थोड़ा पुराना दिखता था. very good. And the men were wearing green eye shades, long black sleeve protector, and the light were dim in the third level, Very nice, which were flickering. very nice. They were open frame glass light, बहुत अच्छा, and there was also a brass spittoon. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वंडरफुल. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है. पॉइंटर्स ये सारे मार्क करे हुए हैं जहां से अर्शदीप ने अभी देख के बताए हैं. बहुत ज्यादा अच्छी बात है. अर्शदीप, आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर बेटा. Thank you, ma'am. If the third level was just a product of Charlie's imagination, why wasn't it rosier than reality? अगर थर्ड लेवल सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन का हिस्सा था, तो ये रोजियर, मोर अट्रैक्टिव क्यों नहीं था रियलिटी से? थर्ड लेवल रैशनली, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता था. ऑर्डिनरीली जो भी इमेजिनेशन होती है वो रियलिटी को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करती है, कलर ऐड करती है और वो लाइफ को लार्जर एक्सटेंट तक शो करती है. लेकिन जो नॉन एग्जिस्टेंट थर्ड लेवल था वो एक ऐसा प्लेस था, लैक लस्टर प्लेस, क्योंकि वो पास्ट को बिलोंग करता था. वो चार्ली की इमेजिनेशन के अंदर था और जो पास्ट था वो डल था, ड्रैब था. Charlie was trying to look for tranquility, peace. He wanted to escape from the razzle dazzle of the modern world. And क्यों वो रोजियर नहीं था रियलिटी से? वो रोजियर नहीं था रियलिटी से क्योंकि उसको फॉलो करने से वन कुड गो क्रेजी. उसको बहुत बिग वाले इश्यूज हो सकते थे, क्योंकि ये मालूम था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. क्योंकि ये वाली बात बिल्कुल क्लियरली पता थी कि थर्ड लेवल कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसी वाली चीज को फॉलो अप करने से बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इसलिए ये वाला रोजियर नहीं था. एज द इमेजिनेशन इज रोजियर देन द रियलिटी इन द यूजुअल मैनर. क्वेश्चन और क्वेश्चन का मीनिंग और आंसर सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Yes, ma'am. what do you understand by a first day cover? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? करा नहीं है रिवाइज बच्चों तुमने? तुम्हें पढ़ के आने के लिए प्रॉमिस करा था तुमने कल, लेकिन मैम आपने थर्ड लेवल की YouTube वीडियोस डाली हैं? सब कुछ डाला है. जो भी पढ़ाया, सिर्फ एक दिन जो अभी बिगिन करा था एनिमी, सिर्फ वो वाले दिन में वन डे यूट्यूब नहीं बनाया था. एनॉयंस अपनी शो करने के लिए लिखा था बहुत बड़ा सा मैसेज आपके ग्रुप्स के अंदर. अदरवाइज आज तक जितने भी लेसन हुए हैं उसके अंदर मैंने डेफिनेटली आपको उसको रिकॉर्ड करा हुआ भेजा है. रात को भी भेजा है बिटिया, कल रात को भी भेजा है आपको उसका जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था. बताओ बेटा, मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? If you say, can I read from the book? यस, यू कैन टेक हेल्प. Um, ओपन बुक है, ये डिस्कशन है बेटा. मैंने तुम्हारे को ये नहीं बोला था कि तुम रट्टा लगा कर आना, मैंने बोला था रीड कर आना, ताकि तुम्हें पता होए कि क्या चीज कहाँ पर है. और जब हम डिस्कस करते हैं तो वो वाली चीज माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है. यस बेटा. So first day cover
is that cover in which when a day when a new stamp is issued, would stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves, and these envelopes are called as first day covers. वेरी नाइस. एक पॉइंट इसमें ऐड कर देना कि ब्लैंक पेपर पुट कर दिया जाता है इनसाइड, बिकॉज अपने आप को ही सेल्फ एड्रेस्ड होता है वो एनवेलप, अपने आप को ही पोस्ट कर रहे होते हैं, और पोस्ट मार्क जो होता है वो डेट बता देता है इशू होने की. स्टैम्प फर्स्ट उस कवर को किस टाइम स्टैम्प को इशू करा गया था वो बता देता है. और साथ में एक लाइन, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड्स इनफ है, तो एक लाइन में लास्ट में ये भी आप ऐड कर सकते हो, बट द लेटर रिसीव्ड बाय चार्ली was having something different, बस जो कि इंडिकेट कर दे कि कंप्लीट सेंस ऑफ द स्टोरी है तुम्हारे पास में. समझ रहे हो बच्चों मेरी बात? मैं जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रही है? Yes, ma'am. एक और नेक्स्ट, एक और. Yes, ma'am. अच्छा जी बेटा, एक और क्वेश्चन है मेरा. How did Charlie come to know that Sam had found the 3rd level? चार्ली को कैसे पता चला? सैम कौन था पहले ये बताओ. His psychiatrist. उसका फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट था चार्ली का. उसको कैसे पता चला कि सैम जो है वो इलिनोइस गेल्सबर्ग में पहुंच गया? कौन वो बच्चा था जो बहुत अच्छे आंसर्स देता था? अर्शप्रीत था कि अर्शदीप था? अर्शदीप आप थे कि दूसरा कोई था? अर्शप्रीत? आप बताना चाहते हो राजवीर? कोई नहीं बताना चाहता. ओके. मैम चार्ली को मैम जी, लेटर मिली थी सैम की, तो उसे पता चला था. कैसे मिली थी लेटर ये भी बताना पड़ेगा ना बेटा. मैम वो एक रात को अपने सारे पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था जो उसको अपने ग्रैंडफादर से मिले होते हैं, तो उसको एक पोस्ट कार्ड लेटर मिल जाता है जो वहाँ पर होना नहीं चाहिए, जो जिसकी डेट लिखी होती है जुलाई 1894, और गेल्सबर्ग का एड्रेस उस पर होता है. और क्योंकि उसको सारे उसके ग्रैंडफादर के मिले होते हैं तो उसको पता चल सकता है कि ये इतना पुराना है, पर ऐसे यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि उस पर सैम लिखा होता है, बाय सैम. और वो ब्लैंक नहीं था. inside there was a letter written by Sam, so he realized कि that means Sam जो है वो already पहुंच चुका है 3rd लेवल के ऊपर, राइट? अब एक और स्टोरी, एक और थी 3rd थिंग, वो भी हम टच कर लेते हैं. और जो मैं और इसको मैं करना चाहती थी 3rd लेवल को. वैसे 3rd बताओ बेटे, इशिता कहाँ चलेगी? Nothing of beauty, ma'am. Ma'am, last spring. मैम माई मदर एट 66 था. 3rd वाला माई मदर एट 66 था. जो My mother at वाले 66. लेसन्स हैं वो वाले लेसन्स जो है वो फिर से आज खुशबू उसमें फिर से डाल देगी ग्रुप के अंदर. Okay, ma'am. ओके. अपने अपने सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. ए सेक्शन से एक भी बच्चा नहीं आया हुआ ना? ए सेक्शन से कोई एक भी बच्चा आया हुआ है? Yes, ma'am. गुरसिमरन आप अपने ग्रुप में डालोगे बेटा. खुशबू बी सेक्शन में डालेगी. सी सेक्शन के अंदर कौन डालेगा? हर्षित कहाँ पर है? लक्ष्य आप डालोगे 12 सी हो ना आप? यस मैम. ओके. यस मैम. हम आप 12 डी में डालोगे. 12 ई आर्यन आप डालोगे. अर्श आप कौन सी क्लास के हो बच्चे बेटा? Section. मैम बी. अच्छा. 12th एफ का कौन है बच्चा यहाँ पर? ट्वेल्थ एफ का कोई बच्चा नहीं है. मनसिमर कहाँ चली गई? हर्षिता Yes, ma'am. आप 12th ई हो? 12th एफ के Yes, ma'am. एफ के किसी बच्चे को बोल के उसमें भी पुट करवाना. Okay, ma'am.
ओके, कोई भी बच्चा 12th F का नहीं है इस वाले Yes, ma'am. माई मदर एट 66। Okay, ma'am. मुझे सिंबोलिज्म बता दो माई मदर एट 66 का। माई मदर एट 66 के अंदर सिंबोलिज्म जो है यूज करा हुआ वो बता दो। स्प्रिंटिंग ट्रीज सिंबलाइज करते हैं यूथ को, मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइज करते हैं यूथ को, ओल्ड मदर ओल्ड एज को सिंबलाइज करती है। इतना इजी था ये वाला क्वेश्चन, इतना ज्यादा इजी था। स्माइल 3 टाइम्स यूज करने का क्या सिग्निफिकेंस है? वर्ड स्माइल 3 टाइम्स यूज करा गया है, क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का? This is a superficial expression. वेरी नाइस, वेरी गुड। किसने किया आंसर? ओके, वेरी गुड। क्यों है सुपरफिशियल बेटा एक्सप्रेशन? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है आंसर। because the author हमने म्यूट कर लिया बेटे, म्यूट कर बोलो। या अब बोलो। because the author wanted to give her mother a positive goodbye or positive adieu. Very nice, very good. Kamala Das wanted to leave on the note of positivity. She realized that her mother was having a very difficult time. It was possible कि mother जो है वो next time कभी ना मिले, फिर भी she wanted to say bye to her, goodbye to her in the positive manner. That is why she smiled, and because it was a forced smile, it has been mentioned thrice. Next मेरे को ये वाला question है कि why are the young trees described as sprinting? Sprint run fast करना होता है। स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया ट्रीज को? मैम जब कमला दास अपनी कार से वापस जा रहे थे अपनी मदर के साथ, तो जब वो बाहर देख रहे अपनी मतलब विंडो से, तो उन्हें लग रहा था कि ट्रीज जो है स्प्रिंट कर रहे हैं बहुत तेज, जबकि वो अपनी जगह पे थे लेकिन कार चल रही थी। जब भी कार बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव होती है तो जो बाहर चल रही चीजें होती हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि वो साथ में बहुत तेज रन कर रही हैं, इसलिए वो स्प्रिंट करती हुई लग रही थी। बिकॉज एंड व्हाई डिड शी लुक आउट? उसने बाहर क्यों देखा? वेरी गुड अर्शदीप, आई वांट टू से दैट यू आर वंडरफुल। आप बताओ। और मैम कार में उसकी मदर थी जो काफी मतलब वो सो रही थी और उनका फेस जो था काफी पेल येलो था, तो वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बाहर देखने लग गई ताकि वो अपना ध्यान कहीं और लगा सके, अपनी मदर पे उनका ध्यान ना जाए। खुशबू वंडरफुल, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा। उसके बाद में why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर को लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर करा गया है? क्योंकि उनके फेस पे ग्लो था, एक लस्टर था। नहीं बेटा, विंटर मून में हम क्योंकि लेट विंटर्स मून जो होता है वो काफी पेल हो जाता है, येलोविश हो जाता है, और अब जो उसकी कमला दास की मदर थी वो भी अब काफी ओल्ड और एशियन हो गई थी। डीजेनरेटिव स्टेज ऑफ हर लाइफ थी, डीजेनरेटिव। तो जो पेल मून जो है वो एसोसिएट करता है डीके को। मदर जो है वो पेल रिंकली फेस, ग्रे हेयर एंड फेड हो जाता है मून का लस्टर जब वो विंटर के अंदर होता है। दैट इज व्हाई इट हैज बीन कंपेयर्ड, मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, 2 वेरी स्मॉल पैराग्राफ्स, राइट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फेस ऑफ कमला दास मदर बिट्रे हर थॉट्स? जब कमला दास ने अपनी मदर के फेस को देखा और उनके मन के अंदर जो सोच आई, वो कैसी सोच थी? क्या सोचा उन्होंने? कमला दास की जो सोच थी वो बिट्रे हो गई क्योंकि मदर का फेस जो था वो पेल था, रिंकल्ड था, एशन था और हार्ट में बहुत पेन कॉज हुई।
She was realizing that the mother was suffering and it was possible that they would never ever meet again. But then she had the compulsions of her life and she had to move on. She had to go away. There was no choice. So Kamala Das' mother's face betrayed the thoughts that she was having in the mind. Is it getting clear? Time खत्म हो गया. बहुत ही कम टाइम होता है मेरे पास में जो मैं तुम्हारे साथ में रिलेट करती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ. मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारा तुम्हें पढ़ाऊं, पर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमेशा ही टाइम खत्म हो जाता है. मेरे को मेरे नेक्स्ट लेसन्स कल अच्छे मेरे बच्चे, चाहे तुम 2 स्टूडेंट्स आओगे तो भी मैं पढ़ाऊंगी. मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती हूँ वो मैं करूंगी बेटा. Remember to revise the lessons and come over tomorrow. Take care. Look after yourself. Be obedient and study very well. बहुत सारी पढ़ाई करो. बहुत अच्छे बच्चे बनके बहुत सारी पढ़ाई करो. Thank you very much. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.